welcome to IB Today podcast. Let's talk. This is your host Mohammad Afan, and today we're doing a special episode regarding banking the unbankable. So we have one of our industry leaders, the CEO of Microfinance Bank, Mr. Kabeer Naqvi. Mr. Kabeer, थोड़ा सा अपना introduction देते हैं audience को, people who don't know you. Thank you very much, Afan. सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. I'm very happy to be here. मेरा नाम कबीर नकवी, as you just mentioned. I head Microfinance Bank. I am an accountant by qualification, switched over from my CFO life to CEO life around 7 years back. All right. So when were you CFO of Ubank? I was CFO of Tameer Bank, which is now Telenor Bank. I was part of the founding team. Right. So you work with Nadeem Hussain. Yes. Right. So let's talk about Ubank in general. How Ubank has evolved, and you were talking about the journey, how Ubank has the journey. So let's talk about the Ubank's journey has been over the period of years. This has been a very, I would not go for a long monologue, but I think I will take 2-3 minutes to build some context here. So एक चीज़ होती है startup जिसके बारे में आप सब सुनते हैं, एक होता है startup with a baggage. Right. So when I came in 2015, Ubank had been around for 3 years. Or it is a telecom owned bank. PTCL is our parent company. Ufone is our sister concern, as you would know, and we have a joint brand by the name UPaisa with Ufone also. So उसमें primarily जो हमारा idea था initially was to go for branchless banking, and जो core microfinance या banking operations हैं वो इतना ज़्यादा focus initially नहीं था. So when I came in, obviously we had to, you cannot put the cart before the horse. So bank को बनाना, उसका brand बनाना, उसको profitable करना, sustainable करना, I think that is key. If you want to do anything digital or any other form of banking, you need to have a strong base to do that. So that was the thought process 7 years back. So just to give you perspective, we were about 24 branches, 340 employees, 600 million of loan portfolio, $1 billion of deposit, and we were in losses. 7 years down, mashallah, organically, we are over 250 branches. The loan portfolio has grown from 600 million to nearly 50 billion as we speak. By the end of the year, we're going to hit that mark, inshallah ta'ala. The deposits have grown from $1 billion to 80 billion organically. The balance sheet footing was 2 billion when I came in. It's ranging in the range of 140 to 150 billion as we speak. So that tells you about the potential of Pakistan also. Okay, organically with local talent, you can actually raise institutions, and we are mashallah highly profitable, and we are fastest growing, I think 7th year in a row. Right. So do you feel, is it because people have that stigma regarding banks? Do you think Microfinance, Ubank, UPaisa has changed that mindset? People, it's not a bank. But something else. I'll share an anecdote with you on this one. I think it's and I get this question very often. So usually जो impression banks का आता है कि these are like suit wearing wolves, interest charging and exploitative and all. Usually ये एक narrative जो है जो चलता है. मैं इसकी depth में नहीं जाऊँगा सच है या नहीं है. But when I came in, अच्छा हम जो हैं थोड़े मुख्तलिफ इस तरह से हैं कि we are the bank of the masses. जो यूजुअली आपके कन्वेंशनल एक बैंक होता है हाई स्ट्रीट बैंक, जिसके लिए जो नो गो एरिया है वो हमारे लिए टू गो एरिया है. So we work on income proxies, we work with the segment of the society that strata जिसको usually riskier समझा जाता है. But you will be very pleased to hear कि जो repayment behavior है in the peri-urban and rural part of the country, that is fantastic. Barring the natural catastrophe अगर कोई आ जाती है, जैसे locust आ गया, floods आए हुए हैं आजकल, उसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी पूरी दुनिया ने नुकसान उठाया. अगर आप इसको एक्ट ऑफ गॉड को थोड़ी देर साइड पे रखिए, आप कन्वेंशनली उठा लीजिए, ये जो सेगमेंट है ये अपने रीपेमेंट में बहुत बेहतरीन है. Yes, और ये लोगों को यूजुअली ये बात नहीं पता, and that's why banks like us are sustainable and sustainably growing also. वरना आप ये सोचते हैं जी जिसकी इनकम स्टेटमेंट नहीं है आपके पास, ये ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं है आपके पास, ये सैलरी स्लिप नहीं है, तो वो हाई रिस्क है, जो कि बात गलत भी नहीं है. मगर अगर आप नीचे जाएं और इनकम प्रॉक्सीज पे जिस तरह हम काम करते हैं, कैश फ्लोज हम वहीं बनाते हैं, उसके जानवर अगर हैं तो वहाँ वो गिनते हैं, क्या और रबी खरीफ क्रॉप को हम फंड करते हैं, एंड लाइफ गोज ऑन एंड इनकम लेवल्स आर इंक्रीजिंग. सो हमने कोशिश ये की, जो मैं एनेक्डोट की बात कर रहा था कमिंग टू दैट, कि अ लॉट मेनी स्टार्टअप्स एंड फिनटेक्स दे स्टार्टेड कमिंग इन फॉर कोलैबोरेशन ऑल्सो. हम बैठे, आई विल नॉट नेम द कंपनी, हमने उनके साथ, उनका बड़ा अच्छा एक बिजनेस था कि वो एग्री वैल्यू चेन के अंदर कुछ काम करना चाह रहे थे. वाज न्यू स्टार्टअप 4 years बैक. और 2 घंटे उनकी सारी कहानी सुनने के बाद वी पार्टनर्ड विद देम एंड वी वांटेड टू वर्क विद देम. 2 घंटे बाद जब बताया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, वन ऑफ देम सेड कि आपने तो बैंक हमारे लिए ह्यूमनाइज कर दिया. हमारा इंप्रेशन बहुत मुख्तलिफ था कि पता नहीं हमें किस तरह से डील किया जाएगा, हमसे किस तरह से रेवेन्यू खींचा जाएगा, या प्रॉफिट में हमें किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाएगा पार्टनरशिप में. इट्स नॉट द केस.
सो आई थिंक अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन. हमारी कोशिश ये, जो हमारी काविशें हैं वो ये कि हम इन द रियल सेंस बैंक ऑफ द मासेस बन सकें और लोग कंफर्टेबली हमारी ब्रांचेस में भी आएँ, हमारे हेड ऑफिस में भी आएँ और इंटिमिडेट ना हो ब्रांच के अंदर जाते हुए. दैट्स द आइडिया. राइट. आपने बात की रूरल एरियाज में दोज पीपल हु इनके पास आपके पास कोई वेरिफिकेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सैलरी स्लिप्स के इश्यूज है. मगर देखिए, हाउ डज योर अप्रोच चेंज? आप अर्बन में भी है, अर्बन सिटीज में भी है, आपकी रूरल सिटीज में भी है, तो मतलब हाउ डू यू थिंक आप अप्रोच कैसे चेंज करते हैं? देखें, ये ज़बरदस्त सवाल आपने किया है. अलग दुनियाएं हैं. बिल्कुल. ठीक है जी. सो होता ये है कि जो कोशिश हमारी है वो उस वक्त ये कि अर्बन सेंटर्स लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, अदर टियर 2 सिटीज़, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ मनी अगर आप देखें, लोगों के सेवर्स हैं. जब आप रूरल में चले जाते हैं जहाँ पे एक किसान है या हारी है जो कि नेट बोरोर है मोस्टली, बिकॉज इतनी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम उसके पास नहीं है. पाकिस्तान को इन माय व्यू एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ माइक्रो फाइनेंस बैंक प्रैक्टिशनर, ज़रूरत ये है. पहले वैसे आपका जवाब दे दे, मगर थोड़ा सा लोगों को थोड़ा डिफरेंस भी बता दिएगा माइक्रो फाइनेंस और नॉर्मल बैंक. जी, आई विल. सो उसमें होता है कि अब इनफैक्ट ये बड़ा सही इसमें वीव हो जाएगा कि हम बेसिकली बैंक्स क्या करते हैं. बैंक की बात करें, बैंक जो है इंटरमीडिएशन का काम करते हैं कि जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, एक्सेस हैं, वो लाके डिपॉजिट कराते हैं. जिनको ज़रूरत है प्रोडक्टिव यूज़ के लिए उनको देते हैं और बीच में स्प्रेड बनाते हैं, और दैट्स हाउ बैंक्स वर्क. ये जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है. अब होता क्या है, फ़र्ज़ कीजिए कि आपके घर पे अगर कोई डोमेस्टिक स्टाफ है, वो आ रहे हैं किसी दूर दराज गांव से माइग्रेट करके आए हुए हैं, और आपके जो भी उनको तनख्वाह देते हैं वो फिर पैसे भेजते हैं अपने घर, अपनी वालदा को या बीवी को या बच्चों को. अच्छा, उन इलाकों के अंदर अगर बैंक्स, हमारे जैसे बैंक्स, इन्वेस्टमेंट ना करें, क्रेडिट ना दें, और उस पैसे से जो उसकी सेविंग है आपको और मुझे यहाँ पे गाड़ियाँ लीज करा दें और घर मॉर्गेज कर दें, तो वेल्थ का गैप बढ़ता रहेगा. राइट. सो हमारी कोशिश क्या है कि हम इसको फ्लिप कर दें कि आपके मेरे जैसे लोगों से जो शहर में बैठे हुए हैं उनके एक्सेस पैसे डिपॉजिट मिलें विद गुड सर्विस, और जहाँ पे पैसों की ज़रूरत है क्रेडिट ऑफर करने की, कि पाकिस्तान 80% प्लस अनबैंक्ड है इस वक्त. अगर मैं क्रेडिट की बात करूँ तो वो उससे भी कम है. तो वहाँ पे जब आप क्रेडिट देना शुरू करते हैं प्रोडक्टिव यूज़ के लिए, तो इनकम लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं. सो अगर मैं रेगुलर हाई स्ट्रीट बैंक की तरह सोचूं तो मैं हाई रिस्क एरिया में ना जाऊँ, और यहाँ पे जिसका रिस्क बेहतर है, जो कोई बुरी बात नहीं, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अगर आपने मासेस के लिए काम करना है, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए काम करना है, देन यू नीड टू गो एंड टेक रिस्क इन दोज एरियाज एंड टेक मनी फ्रॉम द अर्बन सेंटर्स एंड फ्लो इट थ्रू टू द रूरल सेंटर्स वेयर इट इज नीडेड फॉर प्रोडक्टिव यूज. दैट्स व्हाट वी डू. दैट्स हाउ वी आर डिफरेंट आल्सो. राइट. सो मतलब एक तो सोशल गोल भी हमें पता चल गया कि हाउ इट कुड हेल्प सोशली. बट लेट्स टॉक अबाउट द, आपने रूरल की बात तो कर ली, लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस क्या आते हैं. How do you feel with challenges? How do you feel with those challenges? देखिए, मैं जब शुरू में यहाँ पर आया तो मेरे अंदर खुद बड़ा ये इनर्शिया था कि मैं किस तरह से जाऊँ, ट्रैवल करूँ, अपनी ब्रांच देखूँ, बिकॉज आई वाज CFO इन माय पास्ट लाइफ. मतलब लाइफ वाज जस्ट ऑफिस, घर, यू नो, एयर ट्रैवल, दैट्स इट. आपको जान के ताज्जुब भी होगा, शायद खुशी भी हो, कि मैं और मेरी लीडरशिप टीम हम कोई 7 से 8 हज़ार किलोमीटर हर क्वार्टर ट्रैवल करते हैं बाय रोड. बाय रोड? जी. तो ये जो माइक्रो फाइनेंस का काम है, ये गोल्फ कोर्स के ऊपर नहीं चलता. You have to be where the rubber meets the road. You have to meet your clients, you have to meet your people, and I cannot begin to tell you how happy the staff is. अगर बॉर्डर पे कोई ब्रांच है, वहाँ पे जब हम थके आ रहे, कमर तोड़ के, यू नो, 2-2 दिन ट्रैवल करके पहुँचते हैं, तो उनकी खुशी का और मोटिवेशन का कुछ और होता है. उससे फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलती है. जो ग्लू रही है यू बैंक की ग्रोथ की, चाहे हमने इस्लामिक बैंकिंग में हम चले गए, हम कन्वेंशनल में जा रहे हैं, हम अर्बन में जा रहे हैं, हैज़ बीन द ह्यूमन कनेक्शन विद आवर पीपल एंड आवर क्लाइंट्स. एंड यू नो, वंस व्हेन यू होल्ड हैंड, उनको पता है कि इस्लामाबाद में बैठ के ऑर्डर नहीं कर रहा है सिर्फ, और हम यहाँ 50 डिग्री के अंदर लेंडिंग कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं जाके गाँव में. ये खुद भी आते हैं, ये खुद भी साथ खड़े होते हैं, ये खुद भी ये गर्मी खाते हैं, और इनको एहसास है कि नीचे चीज़ें क्या हैं. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ आवर USPs एज वेल, एंड आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड कि हम जिस तरह से जुड़े हुए हैं सारे के सारे 4000 लोग. अच्छा, इधर आपने बात की डिजिटली की तरफ, तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ डिजिटल हैज मेड अ चेंज, हाउ टेक्नोलॉजी का यूज किस तरह, यू नो, हैज इंप्रूव ट्रांजैक्शंस, आपकी एफिशिएंसी लेवल पे किस तरह काम कर रहा है. जी, क्लियर है. सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक डिबेट होती है, और दोनों में कोई प्रोज एंड कॉन्स देखने ज़रूरी हैं. हम इसको समझते, जो इंटरनली हमने टर्म कॉइन की हुई है, फिजिटल. अच्छा. कि पाकिस्तान जो कि 220 मिलियन लोगों का मुल्क है, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, जिसमें ओवरऑल लिटरेसी लेवल्स कम हैं, लोगों का जो कल्चरल एस्पेक्ट भी है कि जब तक वो बैंकर को देख ना लें या ब्रांच की शक्ल ना देख लें, यू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह की सोसाइटी के अंदर काम करें. मतलब अगर हम मैं इसको उठा के यूके से कंपेयर करना शुरू कर दूं तो वो एप्पल्स टू ऑरेंज कंपैरिजन हो जाएगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स. सो मासेस हैं, 64% लोग जो हैं 34 साल की उम्र से कम हैं. यस,
बट 26 मिलियन से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर भी हैं, और उसके अलावा आई कैन गो ऑन एंड ऑन, कुछ डिप्रेसिंग स्टैट्स भी जिसके ऊपर हमने सबने मिल के एज पाकिस्तानी काम करना है। तो हमें ये लगता है कि ब्रिक एंड मोटर प्रेजेंस इस मुल्क में इसकी बहुत ज़रूरत रहेगी इन फार फ्लंग लास्ट माइल एरियाज फॉर श्योर। नाउ वो तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे आप देख भी रहे हैं, और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारे शेयर होल्डर को ये चीज़ बिल्कुल समझ में आती है कि जो बैंक का रियल मिशन विजन अगर मासेस के साथ काम करने का है तो आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। साथ ही साथ, एज आई टोल्ड यू, वी आर अ टेलीकॉम ओन्ड बैंक, सो वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट ऑल्सो। तो हमारे पास पूरा GSM आर्म, हमारा जो सिस्टर कंसर्न है यूफोन है, PTCL है, विच इज़ अ नेशनल कैरियर, पूरा फाइबर ऑप्टिक PTCL का है जिसके ऊपर पूरा मुल्क चल रहा है। सो हम कर क्या रहे हैं कि हम फिजिटल, जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, कि हम डिजिटल रेल रोड्स भी बिछा रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिंग इन अ न्यू सिस्टम, हम नया बैंकिंग सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट ला रहे हैं, हम ओपन बैंकिंग एज अ सर्विस में जा रहे हैं। यू पैसा के वॉलेट्स आर ऑलरेडी आउट देयर, हम अब इस्लामिक वेरिएंट भी डाल रहे हैं। सो मगर जो लिटरेट क्लाइंट है ना, मैं आपको बताऊं, जो बैंक्ड है, वहाँ से हम पहले इसको पकड़ना शुरू करेंगे जो टेक्स हैवी है। स्लोली ग्रेजुअली पेनिट्रेशन होगी, बट हम वही लिंकेज बनाएंगे जो हमने अपने ब्रिक एंड मोटर अर्बन और रूरल का बनाया था, थ्रू द डिजिटल मीन्स ऑल्सो। बट अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन, इट्स नॉट एन आइदर और सिचुएशन, we feel both things have to go together. So you will see a lot many products and services being offered through digital railroads, but we feel कि अगर हमारे पास physical presence of branch नहीं है masses में, तो हम उतनी जल्दी अपना एजेंडा पूरा नहीं कर पाएंगे। राइट, तो टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, आपने बात किया किस तरह हाउ PVCL इज अ रियली एन एसेट फॉर यू और फिजिकल प्रेजेंस पे। बट लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी के कई नुकसानात भी है, मगर वैसे जो सबसे नंबर क्वेश्चन आप जो कह रहे थे, अपनी फिनटेक कंपनी के साथ आपने काम किया है, तो हाउ डू यू थिंक यार, हाउ डज अ माइक्रो फाइनेंस बैंक डिफरेंशिएट फ्रॉम द जो नई फिनटेक कंपनी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बैंकिंग लाइसेंस बाकी सारे लाइसेंसेस से मुख्तलिफ किस तरह है। बैंकिंग लाइसेंस आपको पब्लिक मनी होल्ड करना अलाउ करता है, हेंस द हाई लेवल ऑफ कंप्लायंस एंड स्क्रूटनी एज वेल, विच इज़ ओनली फेयर. If you are a bank, if you call yourself a bank, you sit on public money. You sit on public money, you will be scrutinized, which is fair. सो जो रियल वैल्यू, कोई भी बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक, कमर्शियल बैंक, किसी भी नौयत का बैंक अगर है बैंकिंग लाइसेंस के साथ, वो जो वैल्यू लेके आता है वो लाता है कि स्केल पे जब आपने किसी काम को भी ले जाना है, पब्लिक का पैसा मोबिलाइज करके उससे एसेट क्रिएट करना है, ये आप अगर बैंक हैं, देन स्काई इज द लिमिट. So the biggest value a banking balance sheet can bring in a partnership to any fintech who's out there to solve any problem is to provide the platform where we get the funding through different sources and help the company get to scale. So that's the value we bring in. Right. अच्छा, मैंने आपकी वेबसाइट पे आई सॉ डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स जो आप लोग ऑफर करते हैं। मुझे उस पे ये देख रहा था कि हाउ डू यू, एक तो आई वाज टॉकिंग विद दौरीद एज वेल, वो जो बैड डेट का बात है, हाउ डू यू इंश्योर कि you have less bad debt, मतलब रिक्वायरमेंट जैसे आप कह रहे थे, तो हाउ डू यू इंश्योर दैट? देखें, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हमारा एक तो ये सोसाइटी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी का रीपेमेंट बिहेवियर अच्छा है, राइट. दूसरी चीज़ ये कि जी बैंकिंग में इनहेरेंटली बैड डेट तो होगा, राइट. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बैड डेट ना हो. तो अगर आप बैंकिंग करने निकले और बैड डेट नहीं करना है, तो फिर आप सिर्फ टी बिल्स में पैसे रख के बैठ जाएंगे और बैंकिंग नहीं करेंगे. So majority banks करती है, मतलब if you see, I will not get there. You can say that and get away. I will not get into that discussion. मतलब I would just say कि यार Pakistan is a country which spends the least, मतलब banks spends the least in terms of credit lending. देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर अपनी बात कर लूँ, ये बैंक पे आ जाऊँ, हम भी ट्रेजरी आर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम भी अपना रिस्क मिटिगेट करते हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स हमने भी की हुई हैं. देखें, यू हैव टू, हमने पढ़ा था ना स्कूल कॉलेज में कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. सो कोलैटरलाइज करना अपनी एसेट की बुक को या अपने रिस्क को कम करना इज नॉट अ क्राइम, प्रोवाइडेड दैट यू बैलेंस इट, राइट. सो हम अब ये कर रहे हैं कि जब बैड डेट्स की आपने बात की, हमारा बहुत सारा पोर्टफोलियो कोलैटरलाइज्ड है, बहुत सारा गोल्ड कोलैटरलाइज्ड है. अच्छा, जो नॉर्म है सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब था, और जो हमारी ट्रेडिशनल कुछ वैल्यू है, देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्ड. Now that's a dead asset that's lying at people's houses. Right. What Ubank has tried to do is try to monetize it. वही एग्री लोन है, प्रोडक्टिव लोन है. अगर हम X% के ऊपर अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहे हैं, अगर वो गोल्ड ले आता है तो हम X-2, X-3, X-4 के ऊपर उसको रेट ब्रेक दे के लेंड करें. प्लस जो बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी है, इट कैन बी लेवरेज 5 times than an unsecured loan because of the gold collateral. So it's a win-win for the bank. अच्छा, NPL नहीं आ सकता क्योंकि सिक्योरिटी है, प्लस उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू क्लाइंट की इतनी है, वो कमोडिटी ट्रेडिंग में नहीं है कि उसकी वालदा की या बीवी के अगर गहने हैं अगर वो हैं, तो उसको वो वापस भी चाहिए. तो उसको फ्री लॉकर सर्विस मिल गई, रेट ब्रेक मिल गया, डेड एसेट मोनेटाइज हो गया, प्रोडक्टिव यूज में पैसा लग गया, बैंक ने 5 टाइम लेवरेज कर लिया. सो अराउंड 55% ऑफ द बैंक्स बुक इज बैक्ड बाय गोल्ड. यूबैंक की मैं बात कर रहा हूँ.
फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट गारंटीज सॉर्ट आउट कर रहे हैं विद कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि हम कोलैटरलाइजेशन से भागते नहीं हैं. इट्स अ गुड थिंग for the client as well as for the bank, as long as you stick to the mission of financial inclusion and increase of income levels of people. Right. अच्छा, तो हमने वैसे टेक्नोलॉजी पे थोड़ी बात कर ली, हमने ठीक है चीज़ों पे भी, चैलेंजेस पे भी बात कर ली. हम बात कर लेते हैं कि रीसेंट टेक्नोलॉजी राइज जो हो रहा है विद द न्यू जनरेशन इज लाइक द वेब 3 और ब्लॉकचेन पे बारे में बात कर सकते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू यू थिंक एज अ बैंक, how do you think blockchain will be an important element here? देखें, ब्लॉकचेन एज एनी एंटिटी, ब्लॉकचेन क्या है, जो अगर उसकी जो लेमैन डेफिनेशन है वो ये है कि वो शेयर्ड लेजर्स की बात कर रहा है, राइट. सो बेसिकली कि पीछे जाके ऑडिट ट्रेल आपकी रह जाए. अब मेरे अंदर का अकाउंटेंट भी आपको इसका जवाब देगा. इट्स एन अकाउंटेंट्स पैराडाइज. इफ आई कुड मेक ऑल द जीएल्स एंड ऑडिट ट्रेल्स ऑन ब्लॉकचेन, माय लाइफ वुड बी वेरी इजी. चांसेस ऑफ एरर और ओमिशन will diminish. So blockchain is a technology not only for banks, I think for any corporate or any entity that is going to be of huge benefit in terms of reducing the errors and even frauds for that matter. Right. Yeah. अच्छा, अब हमने बात कर ली. well, जैसे हम रिसेंटली क्या हुआ है रिसेंटली विद ब्लॉकचेन, एंड लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो एक्सचेंज चेंज पे. पाकिस्तान में क्रिप्टो अलाउड नहीं है, मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि ना कोई बैंकर बात करेगा इसके बारे में और ना ही मैं भी बात करना चाह रहा हूँ. But let's talk about crypto exchange around the world. Recent जो decline है with FTX collapse. Recently, BlockFi has also announced bankruptcy. तो आपका नजर क्या है जब आप देखते हैं इस तरह के companies that are worth billions of dollars have just gone under? देखिए, आपने बड़ा अच्छा किया कि शुरू में ही आपने बता दिया कि ना इस पे बैंकर बात करेगा, मैं बात करूँ, और पाकिस्तान में अलाउड नहीं. आई एम वेरी ट्रेडिशनल पर्सनली एज वेल इन दैट मैनर. यू नो, आप अगर 2008 का कोलैप्स भी देखें, एंड आई थिंक दिस इज वेयर यू विल you have to appreciate the Pakistani central bank also. 2008 में भी हमारे वो वाले exposures नहीं थे कि जब meltdown आया दुनिया का, we were safe. Similarly, अगर ये क्रिप्टो इस वक्त अलाउड नहीं हो रहा, nothing against crypto, you know, there is pros and cons for तो इस वक्त I think it's for good reason. Eventually in the future, let's see what the future holds. जो चीज़ें collapse हो रही हैं उस पर हम एक लंबी बहस में जा सकते हैं कि पीछे बैकअप एसेट क्या था, क्या नहीं था, किस तरह से उसकी वैल्यू पर जा. That will be a long debate, but I think I'm happy that we are safe for now. And if we get into something like that, I think the framework has to be very strong before we go. Coming towards to end of the episode, I wanted to ask you कि what do you think is the goal? मतलब आप Ubank के लिए, अब आपके लिए what's the next goal for the next 5 years? नेक्स्ट 5 years के लिए अगर हम 220 मिलियन लोगों का मुल्क हैं और हम अपने आप को बैंक ऑफ द मासेस कह रहे हैं, सो इफ द क्लाइंट बेस डज नॉट गो इनटू टेंस ऑफ मिलियंस, and that is only possible through digital railroads. While we keep on doing the good work that our people are doing on brick and mortar, वो हम करेंगे, मगर हमारा अब बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी है कि हमने डिजिटल रेलरोड्स का सही इस्तेमाल करते हुए टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स को सर्व करना है फॉर बोथ एसेट क्रिएशन एंड लाइबिलिटी. और उसके बाद ऑब्वियसली सारे स्टेक होल्डर्स को खुश रखना है. आखिरी बात मैं ये ज़रूर इरफान करना चाहूँगा, देयर इज़ वेरी लेस डिबेट अबाउट सस्टेनेबिलिटी नाउ डेज. Okay, so call me traditional, call me old school. यू बैंक के अंदर जो हमने एक चीज़ वीव की थी पिछले 7 साल से, जो हमारी एक वन ऑफ द मेन स्ट्रेंथ्स दैट वी हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी. सो बॉटम लाइन पे फोकस करके हम जाते हैं, कैपिटल प्रिजर्वेशन के ऊपर हम काम करते हैं. मतलब आई कैन इंक्रीज द लोन बुक अनसिक्योर्ड डिसप्रोपोर्शनेटली, कुछ लोगों ने किया भी है, एंड शो यू मच लार्जर ऑपरेशन, बट विल बी मच मोर वल्नरेबल. सो मेरा अगर जो ऑडियंस, जो लोग सुन भी रहे हैं और जो अगर हमारे से यंग हैं जिन्होंने आगे काम करने हैं, मेरा उनके लिए मैसेज होगा कि प्लीज़ आप जो भी काम कर रहे हैं या करेंगे, सस्टेनेबिलिटी को प्लीज़ उसके लिए, बिकॉज दैट विल नेवर लेट यू डाउन. आप इन द लॉन्ग रन यू विल बी द विनर अगर आप सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के चलेंगे. अच्छा, since you weren't there in the Pakistan FinTech Network, I asked to all the stakeholders, all the microfinance bankers at that point, what do you think, how big is the opportunity with the Sharia compliance with Islamic Finance? जी, we have, if I don't know whether you followed from a distance, we have recently gotten approval kind of the central bank to allow us licenses for our Islamic branches. हमारी स्पेस में नेशन वाइड आई थिंक वी विल बी द फर्स्ट वन टू गो सो एग्रेसिवली. 1 साल हो गया हमारे पायलट को, और मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि हमारी जो डिलिंक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है. हमारी जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो 1/3 है ऑफ द कन्वेंशनल, और हमारा स्केल जो हमें आता हुआ नज़र आ रहा है वो हमारी कन्वेंशनल साइड से अब तक पायलट का प्रूफ ऑफ द पुडिंग विल भी, जब हम कमर्शियल सही तरह चले जाते हैं जो हम जाने वाले हैं अब, वो उससे बहुत ज़्यादा तेज़ और बेहतर नज़र आ रहा है. सो देयर इज़ अ रियल डिमांड
for Sharia-based financial products in Pakistan. And in fact, हम सबको explore करना चाहिए. देखें, आप छोड़ें, अगर आप किसी religious reason के लिए नहीं भी कर रहे, even for commercial reasons, you know, आप एक बहुत बड़ा segment of the society exclude करके तो नहीं बैठ सकते बैंकिंग से. So मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसमें बहुत सारा promise है और ये बहुत ज़्यादा चलेगा. तो कल मेजर इवेंट हुआ था regarding Islamic Finance. All stakeholders were there. Were you there as well? Yesterday, I was actually opening branches. I was in Karachi, but we opened, mashallah, 5 branches yesterday, so I missed that. Right. अच्छा, towards the end, हमारे कुछ rapid fire questions हैं आपसे जो anything that comes to your mind, right? Ubank. Bank of the masses. अच्छा, Tami Microfinance. My first love. अच्छा, mobile wallets. The future. Right. Islamic banking. Clearly the future. ठीक है. Financial literacy. Very, very important. अच्छा, IB today. Excellent. Alright, thank you, Mr. Kabeer, for coming on the show, giving us this insight regarding microfinance in general and your approach with the rural and the masses, because this is something that nobody else gave me regarding it. If anything else that you want to add before we end the episode? No, I would want to thank you, and I would want to wish you all the best for the good work that you're doing and your team also. All right, and thank you for having Mr. me. Kabeer coming in. Thank you, and all those who are watching, please stay tuned for the next episode. Allah Hafiz.